विश्राम सावधान विश्राम सावधान सल्यूट डाउन सल्यूट डाउन कोर्स पीछे मुड़ कोर्स मध्य से तेज चल Present here. We are here to celebrate our 75th Republic Day of our great nation, India. Indeed, a day when we remember our heroes who sacrificed their lives for our country and when we cherish our unity and diversity. Ladies and gentlemen, let's awaken our patriotic spirit on this grand occasion. ए खुदा, तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। ए खुदा, तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सर को झुकाता चला गया, वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया। Now, let us start this morning with a prayer to the Almighty for His blessing and guidance. So I request Director Sir in front for opening prayer. Close our eyes and shall we all look to the Lord in prayer. Our Father in heaven, who has been looking at us with mercy, with grace, we thank you for this wonderful morning that we have received. It's a great privilege. We, as Indians, we are celebrating the Republic Day of our nation, which you have given in our hands. Lord, we thank you with a heart of gratitude, with a heart of thanksgiving for having shown this day to us, so that we would breathe in this country a fresh and a free air. Lord, as the children join together to give you thanks through their merry hearts, receive our offerings of thanksgiving to you as we celebrate this Republic Day. Mighty God, we give our nation in your hands once again. Safeguard it for our generations to come, so that we may live and flourish in this land and take your name and live peacefully in the land that you've given us. Lord, we give all our brothers and sisters who are staying in this country together as one family called as Indians. We give our safety, our security in your hands. Lead us to have generations of peace in this country in which you have placed all of us as inheritors, as citizens of this country. Teach us to protect this country, to safeguard this country. The future generation as it celebrates, give root and the fundamentals that they hold on to. We give ourselves once again in your precious hands. And we ask this prayer in the loving and precious name of our Lord and Savior Jesus. Amen. I would like to call Abhinit Mishra in front. Close your eyes and bow your heads down. Timothy, chapter 1. Nor give heed to fable and endless genealogies which cause disputes, rather than godly edification which is in faith. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith, from which some having stayed have turned aside to idly talk, desiring to be teacher of the law, understanding
neither what they say nor the thing which they affirm. But we know that the law is good if one used lawfully. Amen. Now it's time to welcome our guest. For that, I request Jelam ma'am to welcome our chief guest with a flower. स्कोर सावधान विश्राम सावधान स्कोर मध्य से तेज चल Now I request everyone present here to please stand up in your places. पंजाब सिंध मैं 7वीं कक्षा की छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज तिरंगा फहराते हैं अपनी पूरी शान से, आज तिरंगा फहराते हैं अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। जय हिंद, जय भारत। कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड गेस्ट, रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, पास्टर मोहन पीटर सर, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, मिस्टर लॉरेंस पीटर सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, मिसेस स्मिता पाटिल मैम, and respected Veronica ma'am. My name is Malina Variappa Madrewal, studying in class 7. Wish to give a speech on this Republic Day celebration. On this occasion, I would like to thank management and teachers for giving me an opportunity to speak about Republic Day. Today, we all are gathered here to celebrate the 75th Republic Day of our nation. On martyrs and heroes of the army and civilians on this day. I am proud that I am an Indian. Jai Hind, Jai Bharat. Candidates, attention! Everyone, get ready for drill.
Mr. Haridas Gyavan and Mrs. Pramila Gyavan figure who will share their reflections on the significance of Republic Day for our nation. Please welcome Mr. Haridas Gyavan in front. Sir, I would request you to share some words of wisdom and your experience. Good morning, everybody. We have gathered here to celebrate the 75 Republic Day. Hello, 75 Republic Day. Actually, there are two days important in the Indian history. We got independence in 1947, but there was no constitution. And without constitution, it is not called as a full-fledged country. So, in 1950, Dr. Bhimrao Ambedkar, he is the head of the Constitution of India. He written in handwriting. There was no typing, nothing. And at that time, he has more than 1,000 pages. He is written by hand. That is a great thing. Second thing, our India is a secular country. Secular country means we welcome all the religions. Some countries they are different. And our constitution, actually, it is own constitution. It is not copied by everyone. But Dr. Ambedkar, he studies the America, England, and France. So he read the Constitution of India, Constitution, and then he written the independently our Constitution. And second thing I want to tell you, this is a golden opportunity for me which you have given. I am the person who hosted a flag first time in my life. नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में ख्वाहिश है न तेरा न मेरा न इनका न उनका, ये सबका वतन है यारो, संभालो इसे। सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अम्बर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अम्बर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। सुंदर देश हमारा भारत जिसका नाम, धरती अम्बर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। हम भारत के रहने वाले, भेदभाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने। हम भारत के रहने वाले, भेदभाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने। हर कष्टों को दूर करे हम, हो मुश्किल आसान। धरती अम्बर पर्वत नदियाँ है जो इसकी शान। On this auspicious day, the 75th Republic Day, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वातावरण नागपुर के लिए ज्यादा ठंडा है ऐसा लग रहा है, और ठंडक वहां कुर्सी और पेरेंट्स की उपस्थिति पे ज्यादा असर डालती हुई दिख रही है कि हम सब ठंडे पड़ गए हैं कि गणतंत्र दिवस हम घर बैठे ही टीवी लगा के मना लेते हैं करके। बदलते युग के साथ गणतंत्र का जोश खूब दिखता है। झंडे लेकर
दौड़ने का उत्साह बहुत दिखता है, लेकिन ध्वज के प्रति और गणतंत्र के प्रति जो भावपूर्ण आदर जो कुछ वर्षों पहले पिछली पीढ़ी में जो भारत और गणतंत्र को लेकर जो हृदय में जो प्रभाव था, वो प्रभाव घटता हुआ दिखता है। ताली बजा सकता है, मेरे शब्द के लिए नहीं, पर इस भाव को हम अपने अंदर जगाने के लिए। हम शब्दों को सुन लेते हैं और उत्साहित हो जाते हैं, और कुछ समय बाद वो उत्साह खत्म हो जाता है। मैं आपको बताऊं, गणतंत्र दिवस और भारत का आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस करके हम जब मनाते हैं, ये एक दूसरे का वर्चस्व बताने के लिए नहीं है। हम देखते हैं दिवाली में हम देखते हैं कि इसने अगर 5 शॉट के फटाके लगाए तो हम 12 शॉट के लगाएंगे। उसने 12 शॉट वाले पटाखा लगाया तो हम अगले साल 50 शॉट वाला लेके आएंगे। वर्चस्व का एक अभाव हो जाता है। लेकिन गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस धर्मनिरपेक्ष, जात निरपेक्ष, आर्थिक स्थान से निरपेक्ष, स्त्री पुरुष ऐसा लैंगिक उसमें फर्क ना देखते हुए, उम्र का तकाजा ना देखते हुए कि बच्चा है कि बड़ा है, हम सारे मिलकर एक जोश के साथ मनाते हैं कि आज हम सब सुखी हैं, क्योंकि गणतंत्र अपने जगह पर लागू है। हम कहीं पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा जा रहे हैं आजकल। हमको लगता था कि धीरे धीरे देश अपने मूलभूत बातों की तरफ आ रहा है, पर कहीं सिर्फ गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस धीरे धीरे आजकल सिर्फ जोश प्रदर्शित करने का दिन बन गया है। एक दिन का जोश, और उसमें भी सड़कों पे आप जाओगे तो अरेरावी होते हुए दिखती है। मराठी मध्ये आपण म्हणतो ना तो शब्द अरेरावी, सड़कों पे अरेरावी होते हुए दिखती है। बाइक्स घूम रहे हैं तेज गति से, झंडे लेकर दौड़ रहे हैं, फुटाड़ा में जाकर एक जमघट बनाकर बैठ गए हैं, और कर क्या रहे, वही खर्रा मुंह में डालकर थूक रहे हैं, और वही झंडे को लेकर घूम रहे हैं, और उसमें बैठ के गाली गलौज भी चल रहा है उसी बाइक पे। क्या ये गणतंत्र देने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर और अन्य लोगों ने इतना परिश्रम करके गणतंत्र लिखा? क्या ये दिन देखने के लिए गणतंत्र रचा गया था कि हम एक दूसरे का कॉलर पकड़ ले, कि एक दूसरे के साथ हम झगड़ने के लिए बहाने ढूंढे? आप सबके लिए आज का 75वें गणतंत्र दिवस में ये संदेश अपने साथ रखना। आपके क्लास में जो भी आपके बाजू में बैठता है उसका ख्याल रखना सच्चा गणतंत्र का अर्थ है। क्या अर्थ है गणतंत्र का अर्थ? बाजू वाले का ख्याल रखना। यस, इधर से आपके क्लास में, बोलिए हमारी क्लास में, हमारे बाजू बैठने वाले का ख्याल रखना जरूरी है। हमारे पड़ोसी का ख्याल रखना जरूरी है। जो संस्था स्कूल को चलाती है उसका नाम है गुड समैरिटन फेलोशिप। आप में से कितने लोग संस्था का नाम याद रखते होंगे, मैं नहीं जानता, अक्सर करके हम उन बातों को भूल जाते हैं। गुड समैरिटन का अर्थ यही है, एक भला व्यक्ति जो दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर खड़ा रहता है। कुछ समय पहले अच्छा सामरी, हिंदी में उसको अच्छा सामरी बोलते हैं, वो सामरी एक प्रदेश है, वहां का एक व्यक्ति है जिसको लोग पिछड़ा मानते थे, जिसको लोग बोलते थे कि ये सब फालतू लोग हैं। लेकिन दुख के समय वही फालतू आदमी आके खड़ा हुआ, और जो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता था उसको पानी पिलाया, उसके घाव को पट्टी लगाया, और उसको जाके अस्पताल में सराय में जाके उसको डाला और उसका ख्याल रखा। और सराय मालिक को अपने जेब से पैसे देके बोला कि इसका ख्याल रखना जब तक इसके घर वाले आके इसको लेके नहीं जाते।
अच्छा कमाना, मैं फलाने समाज का हूं, अपने समाज को संभालना। अपने लोग हैं ये लोग, ये ही अपने लोग हैं। ये मेरे जात की बच्ची है, ये मेरे जात का बच्चा है, इसके लिए हमको कुछ करना है। ये जब तक आप और मैं करते रहेंगे तो ये देश का सत्यानाश और ये गणतंत्र गिरता जाएगा। जिस दिन हम सोचेंगे ये रास्ते में दिखने वाला हर एक बच्चा मेरा है, मेरे देश का भविष्य है, ये आज एक दिन के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, इसको अपना एक जीवन का सूत्र बना लीजिए। फिर देखिए धीरे धीरे नवनीत नगर बदलेगा, 8वां महल बदलेगा, दौलामेठी बदलेगी, इसको देख के नागपुर शहर बदलेगा, महाराष्ट्र बदलेगा और पूरा भारत बदलेगा। छोटा मत सोचना कि मेरे एरिया से क्या हो, नहीं, आपके मोहल्ले से आप शुरू करोगे, उसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। अपने आप को छोटा मत समझिए। ईश्वर ने ये सांसें दी है ना, सुबह शाम हम जो लेते रहते हैं, उसके लिए ईश्वर को शुक्रिया बोलते हैं और सो जाते हैं वापस से गुर्राटे मार के। अगर सच में शुक्रिया बोलते हो तो उस सांसों का कर्ज अदा करना है। ऑक्सीजन का हॉस्पिटल में बिल अदा करते हैं, ईश्वर ने दी हुई सांसों का कर्ज अदा करना पड़ेगा। जिस देश में उसने हमको रखा है इतना सुरक्षित, सुबह शाम बिंदास हम आजादी के साथ घूमते हैं, उस देश के प्रति हमारी जवाबदारी यह है कि अगली पीढ़ी को उस देश के लिए तैयार करना। इसलिए याद से इस सूत्र को, आपसे सबसे गुजारिश है मेरा कि इस सूत्र को यहां से लेकर के जाइए कि हर एक बच्चे को जिसको आज आप बोलोगे, सिर्फ हैप्पी रिपब्लिक डे मत बोलना बेटा, रिपब्लिक को संभालना, कॉन्स्टिट्यूशन को संभालना, कॉन्स्टिट्यूशन को संभाले रखना बेटा, अपने देश का धन है, अपने देश का यही संपत्ति है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को संभाल के रखना करके हर बच्चे को आज हमें नारा देते हुए जाए, ताकि उनके जहन में वो बात बैठी रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारी ताकत है। और वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आप सबों को, बच्चों को, टीचर्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, पेरेंट्स को, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ इस स्पेशल दिन को मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो हमें मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने, साहस और प्रेरणा देता है। यह दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनकी बदौलत आज एक भारत गणराज्य देश कहलाता है। हमारे महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसे कि हम सब जानते हैं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से हम सब इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें इस वर्ष हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत से मिला है। हमारे महान नेता और स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के पूर्ण स्वराज के लिए 200 वर्ष से अधिक समय तक संघर्ष किया है। इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर न रहे और उनके स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने के लिए अपने आगे बढ़ने के लिए निर्वहन कर सके। हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। भारत देश को एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। हम सब मिलकर सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति जागरूक करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्रदान करेंगे। सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार देंगे और जैसे अपने सामाजिक मुद्दे जैसे गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग और समानता आदि के बारे में जागरूक होना चाहिए, ताकि आगे बढ़ने में उन्हें हल किया जा सके। बलिदानों का सपना सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। बलिदानों का सपना सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को, जिनकी शहादत से ये भारत स्वतंत्र हुआ, जिनकी शहादत से ये भारत स्वतंत्र हुआ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Are you happy?
Happy Republic Day to all. Thank you, ma'am. Welcome all. Dear parents, we are celebrating 75th Republic Day. As sir told, save Republic Day, save our constitution. That should be our motto, and that is how we are going to go. I am here to announce the prizes. Master, thank you for all your blessing that today we all are able to celebrate this beautiful day in our life, Master. Lord, as we celebrate 75 Republic Day, please, Lord, help us that we know the importance of it, Master. Help our children, Master, to know the importance of this day, Master. Lord, we all come to your throne of mercy with one heart. Help our country to develop more, Master. Help our country to all the people be in unity, Master. Lord, especially I come to your throne of mercy and I especially pray for our school, Master. You bless all the children abundantly, Master. Bless all of them, fill all of them with wisdom and understanding, Master. Help them in their study, Master. Lord, I especially pray for all the parents, those who are present over here, Master. Bless them, Master. If anybody is having any problem in their life, Master, Lord, help them to come out from that problem and bless them abundantly, Lord. Lord, I especially thankful to you for our teachers, for our management, for our principal, for our guest master. Bless them abundantly, Lord. Bless them abundantly. Let your presence always be them, Lord. Lord, I ask this prayer in the precious name of Jesus. Amen. Amen. पेरेंट्स है क्या?